welcome song and the Saraswati Vandana by our employee who is very talented. So I would like to invite her on stage. Good morning, everyone. जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति पद्मासन हो माता, जयति शुभ वरदायिनी, जयति पद्मासन हो माता, जयति शुभ वरदायिनी, जगत का कल्याण कर मां, जगत कल्याण कर मां, तुम हो विश्व विनाशिनी, जयति जय जय मां सरस्वती। अब मैं आप लोगों की वेलकम के लिए एक सॉन्ग गाने वाली हूँ, विच इज वेरी शॉर्ट। सो स्वागतम शुभ स्वागतम, अति स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारती भारतम, नित प्रियम भारती भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अति स्वागतम शुभ स्वागतम। Thank you so much. So before we start, I would like to have a quick intro of all of you. So I just want to know your name, your location, and your motive to join this event. So we'll start with Hukum sir. Hello everyone, my name is Abhay Kaushik. I'm currently pursuing my CA. And just here for a new experience like how business runs and all that. Thank you. वर्किंग कर चुके हैं, पहले भी होंगे, सिखाना भी हमें अच्छे से जानते हैं। सेकेंडली मेनली मेरा क्या था, मोटिव मेरा है मैं अपने स्टाफ को आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊँ और वो लोग यहाँ से एक इंस्पिरेशन लेके जाएंगे कैसे काम करते हैं। तो सर मेरा यही। Hello, my name is Dipanshi Sharma. Currently, I am pursuing MCOM first year. My motive is accounting and finance services related. Thank you. Hi, my name is Charan Batra. I'm from Mandi House and working with the Tally software. I've come over for here for taxation purpose to learn the taxation. Hello everyone, I am Twinkle. I'm 4th year law student and I just came here to know about taxation law and GST. Thank you. Hello, I am Kiran. I am living from Patel Nagar and मैं एनजीओ की नॉलेज के रिगार्डिंग आई हूँ। देन मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो काफ़ी मैंने इस ऑफिस के बारे में सुना है, तो इसीलिए थैंक यू। Hello everyone, myself Imran Khan. I'm owning a restaurant in Lakshmi Nagar, Sakarpur. I'm here to learn something about GST and ITR and Shikha ma'am will know me. Thank you. Hello, I'm Neha Yadav. I'm from Faridabad and मैं भी एक्सपीरियंस के लिए आई थी। आप काफ़ी नाम सुना था। My name is Amit Kumar Yadav from Global Tax Council India. Say thank you so much. It's Samandeep from Punjab. I'm here for knowledge purpose related to finance. So आप सभी लोग यहाँ पर नॉलेज गेन करने आए हैं, राइट? सो आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, ऑब्वियसली। ठीक है, सो मैं आप लोगों को अश्योर करती हूँ कि यहाँ अगर आप आए हैं तो आपको ये जो इवेंट रहेगा फुल ऑफ नॉलेज रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा और आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेमोरीज क्रिएट करेगा। सो हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर गजेंद्र सर। हेलो एवरीवन, आई एम गजेंद्र सिंह, मैनेजर डायरेक्टर ऑफ Agrawal Taxcom Private Limited. I would like to welcome to you all in our office. Me and my team are very excited and happy to join you.
I want to know about our company, Agarwal Taxcon Private Limited. Our company, Agarwal Taxcon Private Limited, deals in taxation and registration services from last 20 years. We have 60 plus employees, which are differently working in different fields like GST, income tax, TDS, NGOs working. We also have expertise and handle the income tax scrutiny cases, appeal cases, ED cases. So also I want to introduce our promoter of the company, Mr. S.K. Agarwal CA. He is vast knowledge of 20 years audit and taxation matter. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite ma'am to say some few words about our company. Thank you. Good morning, everyone. This side Priyanka from Agarwal Taxcon, and I'm working here from since 7 to 8 years. And my profile is in company and income tax manager. I'm dealing with company incorporations, income tax filings, notices of reply, etc. And it's my privilege that I am a part of this organization. Shri Gajendra ji and Shiv Kumar Agarwal. These are the mentors for me because they coordinate not only for learning with me but also support me for my family. Each and every time whenever I feel some problem, then I have no any doubt or confusion. I am easily discuss with them and they provide me guidance. And my team and my motive is to provide services to the client, valuable services, because for my team and on behalf of Agarwal Taxcon, the client is boss to me. कि मुझे 100 रुपये अगर किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे 100 रुपये की सर्विस प्रोवाइड करनी है. मुझे अपना पूरा 100% देना है. 100 रुपये का काम है तो मैं 1000 रुपये का काम करके दूंगी कि कल को क्लाइंट कहे कि मैम अपने बेस्ट गाइड किया. कुछ लास्टली मैं आपको फ्यू वर्ड्स बोलूँगी. अब्दुल कलाम जी के वर्ड्स हैं कि इफ़ यू फेल डू नॉट गिव अप. एनीवन can you clear me what means of fail? What fail what determines? Anyone? Fail means just to abandon and if you want to get up again, then go try again and again until you get the success. Dear, another answer is fail means and again first attempt and learning. So never afraid for any problem. Be strong and any hurdle you can easily face this and give a fruitful result to your company. And even if you don't take a risk, so then you can't grow yourself and you can't promote your company. But you are doing better, but doesn't promote yourself, your skills. So thank you. Thank you so much. Good afternoon, all of you. Thank you for giving me a beautiful opportunity for representing myself in front of you. I am Pratibha, working in Agarwal Taxcon as a GST manager from last 6 to 7 years. We are dealing more than 300 clients and do all the GST return as quarterly, monthly and annually basis. And we are also dealing GST notice, VAT assessments, GST registration, GST amendment, all the GST returns. We have a team 12 to 13 person. They take care of all of my GST clients and they handle all GST related work. Thank you. Hello, good afternoon, all of you. Thank you. First of all, thank you, Mr. Gajendra sir, Priyanka ma'am, and Pratibha ma'am, and other senior persons for giving me this opportunity to introduce myself. I am Sachin Kumar, and working here last 4 to 5 years. And my profile is a NGO manager in this company, and we are dealing in NGO services like registrations, ATG 12A, FCRA, accounting, audit, Niti Aayog, CSR registrations. So let's me now our NGO services benefits one to one. But for one questions, first of all,
what is this meanings of NGO? Like anyone? Non-government organization. हाँ, non-government organizations. Non-profitable. हाँ, other states is name denoted NPO. Yes, तो non-profit organizations. तो आज मैं अपनी एनजीओ सर्विस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में 1 to 1 डिस्कस करूंगा कि हम कैसे काम करते हैं। दरअसल हमारी टीम में 6 एम्प्लॉयज़ हैं और हम एनजीओ सर्विसेज का रिटर्न फाइल, ऑडिट, आरओसी, जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए सर्कुलर्स कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत एक्ट में चेंजेस किया है, प्रोविजनल लेके आ गई हैं, ATG 12A रजिस्ट्रेशंस, एनुअल डोनेशन रिटर्न फाइल वगैरह भी लेके आ गए हैं। तो टाइम टू टाइम क्लाइंट को सर्विसेज गाइड करना, सर्कुलर चेंज जो भी एक्ट में आया है उनको गाइड करके वो फास्ट सर्विसेज देना, तो इस तरीके से हम यहाँ काम संभालते हैं एनजीओ टीम का। और इसके बाद बात करें तो रजिस्ट्रेशंस आपने देखा ही होगा, एनजीओ रजिस्ट्रेशंस अलग अलग एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, तो आई होप आपको पता भी होगा कि एनजीओ कितने टाइप्स की रजिस्टर्ड होती है। काफ़ी क्लाइंट की क्वेरी हमारे यहाँ पे रेज होती है कि हमें एक एनजीओ बनानी है। अब हम उनको गाइड करते हैं कि सर ट्रस्ट बनानी है, सोसाइटी बनानी है, सेक्शन 8 कंपनीज बनानी है, तो कहते हैं नहीं हम तीनों में से कुछ नहीं बनाना, हमें एक एनजीओ बनानी है। तो स्पेशली हम उनको फिर गाइड करते हैं, समझाते हैं कि सर ये तीनों एक्ट में अगर कुछ भी रजिस्टर्ड हो जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वो दैट इज कॉल्ड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर इनको हम बेनिफिट्स बताते हैं कि बहुत से क्लाइंट की क्वेरी रेज होती है कि एनजीओ हम बनाते क्यों हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बनाने के। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि अगर एनजीओ हमारी रन करते हैं किसी स्कूल, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम, कुछ भी एनी अदर चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर रन करते हैं, तो प्राइवेट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी से हमें इजीली फंड ग्रांट रिसीव हो जाता है। तो इस वजह से हम एनजीओज रन करते हैं। बाकी सो इफ एनी हेल्प, सपोर्ट एंड एनजीओ सर्विसेज, सो कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू। अगर कोई क्लाइंट आता है कोई ट्रस्ट से रिलेटेड, तो उसको कैसे आप मतलब ऊपर उठाएंगे उसको? सर देखिए, ऊपर उठने का मेन मोटिव होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइज। पहले क्या है, हमारे पास काफी क्लाइंट्स ऐसे आए हैं कि संस्था चला रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन कर रहे हैं, और आजकल जमाना है ऑनलाइन का, डिजिटल होने का। हम यहाँ पे क्लाइंट को भी सजेशन क्या करते हैं कि हम डिजिटली एंड मैनुअली दोनों सर्विसेज एनजीओ की सर्विसेज देते हैं। तो डिजिटली भी होना बहुत जरूरी है एनजीओ के लिए। लाइक वेबसाइट्स, अपनी वेबसाइट्स पे टाइम टू टाइम अपडेट कीजिए अपनी चैरिटी को। अगर आप चैरिटी कर भी रहे हो तो उसकी कम से कम 5 फोटोज तो विद बैनर के साथ होनी चाहिए आपकी, और वो आप पोर्टल पे अपडेट कीजिए। दरअसल क्या होता है, डोनर्स भी जो होते हैं वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं वेबसाइट ऑनलाइन। तो सजेशन यही है कि आप अपनी एनजीओ को एडवर्टाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आप चैरिटीज कर रहे हैं। और कंप्लायंसेस के ऊपर बात करें तो एज ए प्रोफेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके प्रिपेयर होने चाहिए। लाइक जो सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी हैं संस्था को लेने, जैसे कि अभी बात करें तो टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, सेक्शन ATG और 12A, ये इनकम टैक्स से अगर संस्था ले लेती है तो टैक्स में बेनिफिट मिलता है, संस्था को भी मिलता है और डोनर को भी मिलता है। तो ऐसे सर्टिफिकेट्स अचीव करने से संस्था अपर लेवल पे भी जाती है, और एडवर्टाइज करने से, अपने रिकॉर्ड मेंटेन रखने से, तो सर इस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो अगर मेरी ट्रस्ट है और वो 3-4 साल हो गई पुरानी, अगर मुझे फंडिंग लेनी है CSR, ट्रस्ट को और ग्रो करना है, ऊपर उठाना है उस लेवल पे, तो फिर कैसे मैं किसी कंपनी से फंड लूंगा और क्या करना होगा उसके लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल CSR फंड पहले इजीली मिल जाता था किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके, क्योंकि आपको पता ही है कि जिनका टर्नओवर 100 करोड़ 500 करोड़ जाता है तो उनका 2% सोशल वेलफेयर में देना ही होता है। तो पहले तो इजीली बिना रजिस्ट्रेशन के मिल जाता था। अभी इन्होंने नया सर्कुलर बजट में पास किया है कि CSR 1 रजिस्ट्रेशन। तो संस्था को पहले CSR 1 रजिस्ट्रेशन लेना है मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल से, वहां से अथॉरिटी मिल जाएगी, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। पहले तो ये कंप्लायंसेस पूरे करने हैं, बाद में फंड के लिए सोचना है। सर अगर कंप्लायंसेस पूरे हो जाते हैं, आई मीन मेरे कहने का मतलब है अगर मैंने उसको पूरा फुलफिल कर दिया, फिर क्या उसकी मतलब गारंटी है कि मेरे को मिल सकती है किसी भी कंपनी का? उसके लिए मैं क्या ऐसा एक्टिविटी करूं या फिर क्या दिखाऊं? सर देखिए, ये फंड रेज मतलब फंड लेने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि हमारा फ्यूचर प्लान है क्या। आप उसमें पूरा एक्सपेंडिचर मेंशन करेंगे कि हमारा फ्यूचर प्लान ये है, इसमें इतना खर्चा आ सकता है। वो प्रपोजल आप एजेंसीज में दोगे, एजेंसीज उसको एक्सेप्ट करे या
डी एक्सेप्ट करे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो और प्रीवियस एक्टिविटीज भी आपकी देखी जाती है कि प्रीवियस लास्ट 3 to 4 ईयर्स में, वैसे तो लास्ट 3 ईयर्स का ही मांगते हैं किसी भी फंड रिसीव करने के लिए, बैलेंस शीट वगैरह। तो लास्ट 3 ईयर्स आपकी प्रीवियस चैरिटी देखी जाती है कि आपने किया क्या है और आप आगे क्या करने वाले हो। ये 2 चीज देखकर ही आपको फंड दिया जाता है। सारी चीजें बेस्ड है चैरिटी पे जी। और अगर आप कहीं पे भी डोनेट करते हो, कुछ भी कोई भी अमाउंट अगर आप लोगों की मदद करते हो तो उसको फाइनेंशियल में दिखाना मतलब जरूरी है उसको। बिल्कुल सर, एक्सपेंडिचर में आप दिखाइए। अगर इनकम फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा कि हमारे पास ऐसी क्वेरीज भी आती है कि मेंबर ने अपनी तरफ से पैसा खर्च कर दिया और खर्च करके चैरिटी भी कर दी। चैरिटी तो संस्था की मानी जाएगी, लेकिन इनकम जो पैसा खर्च किया वो मेंबर ने किया, ना कि संस्था ने। तो ये सब भी आपको बैलेंस शीट में मेंशन करना चाहिए। यानी वो ट्रस्ट के अकाउंट से देना होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए प्रोफेशनल लीगल तरीके से अगर चलें तो पहले ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होना चाहिए, चाहे वो मेंबर ने दिया हो, वो मेंबर कंट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। फिर उसके बाद अकाउंट से उसको ट्रांजैक्शन करना चाहिए, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हैं तो। ये चीज करेंगे तो आप आगे चल के बहुत ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सचिन सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। सो आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो अपन हमारी एक्सपर्ट टीम से, तो यू कैन हैव अ 1-to-1 कनेक्शन विद देम। और अब मैं कोई जीएसटी, कोई टीडीएस, ट्रेडमार्क, कोई भी डिस्कशन आपको करना है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए तो आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ कैसे करनी है, क्या करनी है, कोई भी सजेशन आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो किसी के जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं इजीली, जो बेटर होगा वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका क्या प्लेटफॉर्म है, थोड़ा आप इसका बताएं। आज का एजेंडा जो है वो ये है कि किसी को अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपनी टैक्सेशन मैटर के लिए फाइनेंशियल डीलिंग जो हमें करनी है, जो फाइनेंशियल जो हमारा एक रोल होता है एज ए सीए कंसल्टेंट, उसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपका बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है, आप उसको कैसे ग्रो करना है वो तो आप ही को देखना है, ग्रो कैसे करना है। बट फाइनेंशियली डीलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको ऑडिट कराना है, टैक्सेशन कराना है, आपकी अकाउंटिंग प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही है, उन चीज़ों को कैसे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कम समय में काम कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से बेटरमेंट में हम कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू, डिजिटल मोड में, ये सारी चीज़ें आजकल हम सारा काम डिजिटली ही करते हैं। फिजिकली आजकल डिपार्टमेंट के भी इंटरेक्शन नहीं होते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं और उसमें हम सक्सेसफुल भी हैं। पिछले 9-10 ईयर से हम डिजिटली मोड में ही काम कर सकते हैं। कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट हमारे ऑफिस में जनरली मेंटेन नहीं होती है, सारा का सारा डिजिटलाइज है। कोई फाइल नंबर है, कोई डॉक्यूमेंट है, सारा हमारे सिस्टम पे, सर्वर पे ही होता है। फिजिकली डिपार्टमेंट नहीं मना कर दिया, तो आजकल ऑनलाइन सारा इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, आज तक यहाँ तक कि फेसलेस असेसमेंट भी होने लगे, तो सारा डिजिटल मोड में ही है, डिजिटली हम प्रमोट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही यदि कोई बंदा फिजिकली अभी डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहा है, ट्रेडिशनल मेथड से अकाउंटिंग के काम कर रहा है, जैसे कुछ लोगों की ये भी होता है कि जो ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड में काम करते हैं, टैक्स जमा नहीं कराना है, अपने आप कराना है, चालान बना के भेजना है, बैंक भेजना है, तो वैसे तो हम तो पिछले 10-15 साल से ऑनलाइन ही करते हैं। और क्लाइंट का इतना ट्रस्ट और फेथ हमारे ऊपर है कि वो चाहे 10 लाख हो चाहे 50 लाख हो, वो हम टैक्स हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, हम ऑनलाइन जमा करते हैं। तो बैंक आना जाना कोई नहीं है, फिजिकल कोई चालान जमा करना है, कुछ भी करना है, चाहे ट्रेडमार्क की पेमेंट है, कुछ भी, सारी चीज़ ऑनलाइन होती है। तो वही चीज़ें कुछ लोग अभी भी ट्रेडिशनल मेथड में काम कर रहे हैं कि हम अपने अकाउंट से ही जमा करेंगे, टैक्स हमारा है तो हम जमा हमारे अकाउंट से जाना चाहिए, हम आपको फाइल बना के देंगे, मेल नहीं कर सकते। तो उनसे ऊपर उठना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि सारा का सारा डिजिटली चल रहा है सब कुछ। बाकी किसी को तो डिस्कस करना होता है बता सकते हैं, किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आ रहा है तो। इनकम टैक्स का मैटर है, कोई जीएसटी, ट्रेडमार्क, एनजीओ। इनवाइट करूंगी कि 1 by 1 आए और अपना इंट्रोडक्शन और किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं दीजिए सर। सपोज नहीं यूएसए बेस्ड कंपनी है, इंडिया में कंपनी कॉर्पोरेट करती है, तो उसके लीगल टर्म्स क्या होंगे इंडिया के? फर्स्टली तो इंडिया के अंदर भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि बाहर के ही डायरेक्टर प्रमोटर होंगे और यहाँ इंडिया में कंपनी बनाएंगे। एक पर्सन तो चाहिए इंडिया का, ठीक है, जो एक नॉमिनी डायरेक्टर भी हो सकता है। और आरबीआई से उसको लाइसेंस भी लेना होता है, जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है तो फैमा में वो उसका जाता है, FCGBR फाइल होता है। तो पहले फंड्स आता है,
दिन बिल ये सारी चीज़ तुम्हें पता ही है इनकॉर्पोरेशन का सारा, तो वही प्रोसेस है उसका। उसमें स्पेसिफिक कोई बताओ, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो? इसमें एक और एडिशन पॉइंट है। हाँ नहीं पता होना चाहिए बिल्कुल। हाँ बच्चे हैं जो कि क्वेश्चन जैसा आपने बताया कि इफ द कंपनी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ओके ओके, तो हो भी नहीं सकती, 100 नहीं हो सकती, 1% या 1 शेयर भी हमें नॉमिनल डायरेक्टर पर रखना होगा, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग ऑल डिपार्टमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ द there's the one most important the compliance legally that has to be kept in mind. In a case of normal Indian company incorporation, the documents are simply legally notarized by the government registrar officers. But in case of a foreign company, the documents, if the one of the person, the promoter, who is a foreign shareholder come director, then all the documents shall be apostilled. In our India, the in legal terms, the notary we said. In case of the country outside India, then all the documents, whether it is the ID proof, in the document that's said to be ID and address proof outside the India, each and every single document should be apostilled by the embassy of that country. Otherwise, the application cannot be retained by the NCA, and you will receive the reservation for that. So it's important. Otherwise, all the processes are the same, the filing criteria are the same. Thank you. So I would call Mr. Keshav. Please come on stage and share your views. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Welcome all of you. My name is Keshav. I am working here as a TDS manager. हम यहाँ पे TDS TCS का सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो 10 अप्लाई हो, 10 करेक्शन हो, TDS रिटर्न फाइलिंग, ऑनलाइन TDS पेमेंट्स, और हम यहाँ सारा काम बड़े ही प्रोफेशनल और डिजिटल तरीके से करते हैं, जिसमें हम क्लाइंट्स को टाइमली रिमाइंडर्स भेजते हैं TDS पेमेंट के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, जिससे क्लाइंट्स का सारे रिटर्न्स डेटा जो भी है टाइमली फाइल हो पाता है बिना किसी पेनल्टी या डिले के। थैंक यू। Now request Ms. Shikha ma'am to please come on stage. Please put your hands together for her. Good afternoon everyone. Most welcome to Agrawal TaxCon team. मुझे यहाँ काफी लोग जानते हैं, वैसे तो हमारी टीम तो जानती है, बट जो बाहर से हैं वो भी सब जानते हैं। हम लोग यहाँ पे, मैं एज एन HR मैनेजर हूँ यहाँ पे अग्रवाल टैक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड में, प्लस उसके साथ टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, फूड लाइसेंस और ये सब एक्सपर्टाइज करते हैं। इमरान सर का फूड लाइसेंस हमने ही किया था, इंस्टेड हुकुम सर के भी कंपनीज के फूड लाइसेंस वगैरह हम भी देखते हैं। तो कोई भी डाउट फूड लाइसेंस से रिलेटेड या हमारी टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन सर्विसेज से रिलेटेड हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इट। और बाकी हमारी कंपनी 26 साल से काम कर रही है, इंस्टेड हमें भी 10-12 साल हो गए इस कंपनी के साथ जुड़े हुए, तो बहुत अच्छी सर्विसेज और टाइमली सर्विसेज आपको यहाँ से मिलेंगी। बाकी कुछ भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, कोई भी चीज हो आपका तो प्लीज वी आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन इट। थैंक यू। So I would now request Leena ma'am to come and share her views here. Please put your hands together. Good afternoon, all of you, and welcome to Agrawal TaxCon. I am Leena, the marketing manager and startup registration expert here. And currently, I am handling a team of more than 30% in our marketing team. And also, our team motive is to provide a one-stop solution to our client and the best quality work. Also, I have expertise in Startup India registration. I can proudly say I have done in the last 6 months more than 20 startup get registered, which was successfully done in startup registration portal. And that's all regarding that. Thank you. कोई भी queries है? मैम बोल रहे थे PM के लिए हमारे जो मार्केटिंग वाले के लिए तो कोई बंदे ने कंपनी कॉर्पोरेट करा ली प्राइवेट तो बाद में पता चला स्लैम नाम से 10% ट्रेडमार्क ले ट्रेडमार्क के फ्रेंड होगा कंपनी को ऑब्वियसली उसको पैसे लेके जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। जब कंपनी बनती है ना, यदि कोई ट्रेडमार्क ऑलरेडी है रजिस्टर्ड तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर दैट कंपनी इनकॉर्पोरेशन यदि कोई ट्रेडमार्क मिलता है
उसका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, डिफरेंट नेम हो सकता है, देन ये आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा। ट्रेडमार्क के अंदर भी क्या है कि नेम का कंपनी से सारी चीज़ों से मैच करते हैं वो ट्रेडमार्क वाले भी आजकल रजिस्ट्रार ऑफिस में जो होता है, और ये इसीलिए मतलब क्या था बताओ। कंपनी का ना, ठीक है। बस ये बेटर है कि कंपनी कॉर्पोरेशन के साथ ट्रेडमार्क ले लिया जाए तो ज़्यादा है। नहीं, ट्रेडमार्क का क्या है, ट्रेडमार्क यूज किस लिए किया जाता है? नाम के लिए नहीं किया जाता, नाम भी एक पार्ट है उसका, बट ट्रेडमार्क जनरली ब्रांड के लिए किया जाता है। नाम तो कोई भी कंपनी का रखो, फर्म का रखो, कुछ भी रखो, नेम तो स्पेसिफाई हो जाएगा, लेकिन ट्रेडमार्क यदि तुम्हें नेम ही अपना सिक्योर करना है तो मेरी 46 क्लासेज होती है ट्रेडमार्क के अंदर। फिर उस नेम सिक्योर करने के लिए पर्टिकुलर यदि मान लो रिलायंस का नाम है कोई या टाटा का नाम है, उस नेम को मुझे सिक्योर करना है तो मुझे 46 क्लासेज में करना पड़ेगा। बट पर्टिकुलर एक वर्ड लाइन में मैं डील कर रहा हूँ, जो मेरा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो नेचर ऑफ बिजनेस है, तो मेरा वो क्लास वाइज होगा। तो मैं एक ट्रेडमार्क के जिस नाम से ले भी रहा हूँ तो मैं खाली उस जिस ऑब्जेक्टिव के साथ या जिस बिजनेस में मैं डील कर रहा हूँ उसी को काम कर पाएंगे हम, बाकी में नहीं कर पाएंगे ना। मैं सेम बिजनेस की बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज हम लोग टैक्सेशन में हैं और मेरी कंपनी है और मैंने बना रखी है और मेरी प्राइवेट लिमिटेड मेरी खुद की इनकॉर्पोरेटेड है, थर्ड पार्टी ने वो ले रखा है ट्रेडमार्क उसका। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि रजिस्टर्ड हो गया उसका ट्रेडमार्क, सेम नेचर ऑफ बिजनेस में। नेचर ऑफ बिजनेस पे मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ सेम टाइम पे यदि क्लाइंट को इन्फॉर्म किया जाए कि आप ट्रेडमार्क भी ले लें तो बेटर है। ये लीगल इशू है वैसे, यदि हियरिंग हो और हम ऑब्जेक्शन फाइल करें तो ये नाम रिजेक्ट हो सकता है। नहीं, वो तो एक बट एक प्रोसेस है, प्रोसेस है वो। यस, हाँ। बट मैं चाहूँगा कि यदि जिस टाइम पे क्लाइंट आता है कंपनी इनकॉर्पोरेट कराए, बेटर है कि वर्ड मार्क में और डिवाइस में दोनों में ले ले, और ये सजेस्ट भी करना चाहिए। हाँ, ऐसे कुछ मैटर हैं जो हाँ आते कर हैं। सकते हैं वो भी, बट वही है ना, नेम का मैंने बताया कि नेम सिक्योर करने के लिए मेरा 46 सिर्फ में तो कोई लेता नहीं है, बट सिंगली जिस यस, पर्टिकुलर फील्ड में यदि काम खाली मुझे नेम सिक्योर अपने बिजनेस के लिए करना है कि मेरे बिजनेस में इस नाम को कॉपी ना करे तो एक क्लास में चलेगा। अदरवाइज तो 46 क्लास है ना, कोई डिफरेंट नेम रख के आपकी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, मैं कल को एबीसी पार्टनरशिप में बना के काम कर सकता हूँ ना अलग बिजनेस में, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कोई भी। तो बड़ी कंपनी जो होती है टाटा, रिलायंस, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड, वो सारा कंपनी बनाने के टाइम पे ही सारी क्लास में रजिस्टर कर लेते हैं। आपको याद होगा सेम हम लोगों के साथ भी होता जब आप साथ काम करते थे, टैक्समैन बनाई थी पहले हम। हाँ हाँ, तो सेम बट हमारा टैक्समैन और टैक्सकॉन मिलता जुलता वर्ड था, ठीक है, तो हमने चेंज किया करना पड़ा। हाँ, तो इसलिए बेटर है कि इस क्लाइंट को पहले ही सजेस्ट किया जाए, छोटा सा कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्लाइंट को ऑलरेडी इतने एक्सपेंस होते हैं तो ज्यादा उस बजट के अकॉर्डिंग किया जाता है सारी चीजें। क्लाइंट वेल्दी है तो उसको सजेस्ट भी करेंगे, वो पैसा भी खर्च कर सकता है। बट जब कोई बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास कैपिटल लगाने के लिए फंड्स का सारा अरेंजमेंट जरूरी नहीं कि वो सारा हो, तो टाइम टू टाइम भी कर सकते हैं बाद में भी। मैंने सिर्फ एक सजेशन के लिए। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। यस, Miss Ashwini ma'am to come and share her experience with all of us. Please put your hands together for her. Thank you for coming here. My name is Ashwini and I am working as an accounts manager in Agrawal Texcon Private Limited since last 6 years. एज एन अकाउंट मैनेजर मेरा रोल अग्रवाल टेक्सकॉन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होता है उसको मैनेज करना होता है, बट इसके साथ साथ मेरी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है जिसको मुझे टाइमली पूरा करना होता है। जैसे हमारे सर ने बताया था कि हमारे अप्रॉक्स 5 to 6 के क्लाइंट हैं, उनकी जो भी रिसीट्स होती है चाहे वो फीस की हो या टैक्स की, उनका मैनेजमेंट मेरे ही सुपरविजन में होता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर कोई क्लाइंट का टैक्स आया है तो उसके विद इन 24 आवर्स पेमेंट हो जाए, और अगर कोई फीस आई है तो विद इन 10 मिनट्स उसका इनवॉइस जनरेट होके क्लाइंट को मेल हो जाए। हमारी कंपनी डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट करती है। मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि हमने आज तक कोई भी चालान मैन्युअली जाके डिपार्टमेंट में पे नहीं करा, चाहे वो कोई भी अमाउंट हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारी कंपनी के क्लाइंट जो भी है हम पे इतना फेथ करते हैं कि हमारे कहने पे अपने लाखों का टैक्स हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि उनको ये रहता है कि हमारा फंड यहाँ सुरक्षित है। बस थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ आए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। थैंक यू मैम। तो अब
अभी हम 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, आप लोग स्नैक्स वगैरह लीजिए, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो हम आप सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय आवर ऑनरेबल गेस्ट, वो सभी आप राइट। हमारे पास है GST टैक्सो का हमारा कोर्स है, उसके लिए हमारे जो कंसर्न पर्सन लीना मैम, हमारा जो टैक्स वाला कोर्स अगर आप कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी किसी को पूछता है तो उसके लिए भी आपके कोई ट्रेनिंग पार्ट ऑफ का है कि नहीं? सर करेंटली हमारा टैक्सो ऑनलाइन का एक कोर्स है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा। इवन जो वर्किंग है, अगर GST का उनको वास्ट नॉलेज चाहिए और आप ये घर बैठे इसके वीकेंड्स पे भी कर सकते हैं। इसके वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं 2 to 3 आवर्स की, और वो भी सारे एक्सपर्ट्स इसको हैंडल करते हैं। उसमें बहुत अच्छा वो है, एक अपॉर्चुनिटी है जूनियर्स के लिए। मतलब जो अगर 11th 12th में है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनके लिए एक अलग कोर्स है हमारा, वो जूनियर लेवल के लिए है। और एक वास्ट कोर्स है जो अगर ऑलरेडी वर्किंग है GST या अकाउंटिंग इसमें और नॉलेज लेना चाहते हैं, इवन CS भी आगे और नॉलेज के लिए डेली अपडेट्स के लिए इसको करते हैं। इसमें डेली अपडेट्स उनको मिलता है फिर इसमें, और उसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी आपके मेल पे आएंगी। और मैं थोड़ा ऑल द पर्सन तो थोड़ा सा वो मुझे कोई पूछता है तो इनकेस उनको आपके अंडर में अप्रोच कराया जाए सो डैट कि दोनों का बेनिफिट हो जाए। सर बेसिकली हम लोग अभी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट 6 मंथ्स में हमने 1000+ इंटरव्यूज ले चुके हैं हमें भी लास्ट 6 मंथ्स में, जिसमें से 100 या 150 हम अपॉइंट भी कर चुके हैं एज इन टेली कॉलर्स या हमारी मार्केटिंग टीम के लिए। प्लस जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे ट्विंकल मैम आए हुए हैं या किरण मैम आए हुए हैं, इनके लिए ये भी होता है कि जो GST के कोर्सेज जैसे टैक्सो का मैम ने बताया, टैक्सो का करते हैं या कोई भी ऐसा कोर्स जो GST या किसी भी चीज की नॉलेज देता है, उससे रिगार्डिंग हमारे ऑफिस में रिक्रूटमेंट और प्रोसेस चलता रहता है। हमारे पास वैकेंसीज हैं, अभी अकाउंट्स में भी हैं या आपका इसमें टेली मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी है, HR में भी है और BDM में भी है। तो हम लोग इस सब को प्रमोट करते हैं कि अभी जो भी आपकी इससे हमारे फील्ड से रिलेटेड, जरूरी नहीं है कि आपको नॉलेज हो, एज ए फ्रेशर भी यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, या कोई भी आपके नोन में हो जो अप्लाई करना चाहे हमारे ऑफिस में, तो उससे रिलेटेड जो भी हो हम लोग उनको रिक्रूट करते हैं। उनके कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि उनको ये एजुकेशन होनी चाहिए। इफ दे आर फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड, दे आर BCom पास, देन वी कैन ऑल्सो अपॉइंट दोज पर्सन ऑल्सो एंड गिव द ट्रेनिंग एज वेल। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा मोटिव है। जो भी हमारे पास पर्सन एटलीस्ट 3 या 6 महीने भी काम कर जाता है, वो इतना एक्सपर्टाइज हो जाता है अकाउंट्स फील्ड में भी कि इट विल बी ऑनर कि अगर वो किसी और कंपनी में जाके करता है तो उनके लिए बहुत प्लेजर की बात होती है कि हमें इतना कुछ हम अग्रवाल टेक्सकॉन में सीख के आए हैं। और हमारे 1000+ इंटरव्यूज होने का मकसद भी यही है कि हमारा जो डिजिटली हम लोग इसको प्रमोट करते हैं अग्रवाल टेक्सकॉन को, वो बहुत अच्छे लेवल पे है। हमारे प्रमोटर SK सर हैं, वो ट्रेनर हैं यहाँ के, तो वो सारा कुछ हैंडल करते हैं। कोई भी आपके इंटरव्यूज हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज है तो ही हैंडल हिमसेल्फ द डिजिटली। तो वो सारा हमारा इतना अच्छा पैरामीटर एक बना हुआ है। हमारी वेबसाइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एवरीबडी लव टू वर्क विद अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड टीम। तो ये एक वो है, बाकी ऐसा कोई पैरामीटर कोई एग्जैक्ट नहीं है कि इतनी उसकी एजुकेशन होनी चाहिए यहाँ आने के लिए। ही कैन बी फ्रॉम BCom बैकग्राउंड, अगर वो अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहा है, वी कैन गिव एवरी ट्रेनिंग है। सो दिस इज द बेसिक थिंग वी डू। लॉ इंटर्न्स का भी है मैम। लॉ इंटर्न्स का यही है कि आप लॉ तो कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ अगर आप GST का भी साथ, आप जैसे आपने टैक्सो का, हमने आपको पहले भी आपसे बात हुई थी, वो भी कर लेते हैं तो आपकी इससे नॉलेज गेन हो जाती है। तो उससे रिलेटेड आप करेंगे तो डेफिनेटली विल गिव यू सो मच ट्रेनिंग कि आप लॉ इंटर्न में भी आप अपना कर सकते हैं और अपना GST का तो आप कर ही सकते हैं। तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा आगे के लिए। सो आई होप आप सभी लोगों के काफी सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर अभी भी कुछ भी बाकी रहता है तो आप 1-to-1 आफ्टर दिस इवेंट हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ कोई भी हेल्प ले सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। इवन हमारे कॉन्टैक्ट, हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।
wanted to thank each one of you for coming here, and your presence is highly appreciated. So before we distribute these certificates, I just wanted to have a small feedback from all of you. So one by one, we will start from Imran sir. कि आपको ये इवेंट कैसा लगा और क्या हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट्स के लिए, क्या आपको सीखने को मिला आज के इवेंट से. तो ये फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब काम आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ सीखा मैम को, तो मैं पहले ही फीडबैक्स दे चुका हूँ कि एज ए इवेंट हम लोग आए थे तो लाइक बिजनेस ग्रोथ, अपने फाइनेंशियल कुछ लर्निंग्स के लिए. तो जीएसटी, कोई जीएसटी के लिए आया हुआ है, कोई आईटीआर के लिए. तो लाइक जैसे क्वेश्चन आंसर्स थे कि किसको क्या सवाल है, तो लाइक फीडबैक यही कि नेक्स्ट टाइम जब आप इवेंट करें तो लाइक फर्स्ट आप प्रिपेयर हों और हमें पहले आप एक्सप्लेन करें कि क्या प्रॉब्लम है टॉपिक वाइज, जैसे जिसका जो भी टॉपिक्स है, एंड देन वी कैन पुट द क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. और जिन्हें जिसके बारे में नहीं मालूम, लाइक मैं आया था जीएसटी और आईटीआर के लिए, लाइक कुछ फाइनेंशियल के लिए और भी चीज़ें, लाइक सर एनजीओ के लिए आए हुए हैं. तो सबको एक अलग अलग इन्फॉर्मेशन, सबको अलग अलग नॉलेज के लिए आए हुए, सब लर्न करने के लिए आए हुए थे. तो हम सबको वो नॉलेज जो है मिल जाती है. लाइक बस यही वाज अबाउट आवर ऑल द सर्विसेज. या ऑल सर्विसेज. और बाकी आपकी सर्विसेज, या आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा और नेक्स्ट टाइम आप और बेटर करेंगे. बाकी आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, मैं तो क्लाइंट ही हूँ आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. मैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा हूँ फिलहाल, तो मेरे लिए ये तो बहुत अच्छा रहा. धन्यवाद कहूँगा हुकुम सर को यहाँ तक लाए और देखा हूँ कि किस हिसाब से आगे का काम रहता है. तो मैं सीख रहा हूँ कि किस हिसाब से यदि आगे जा करके यदि कोई प्रैक्टिसिंग करूँगा तो किस हिसाब से एक इन्वॉल्वमेंट बनाना होता है या कुछ भी. ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे मेरा सौभाग्य है. थैंक यू सो मच सर. मेरा फर्स्ट इवेंट था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड एनजीओ की मुझे नॉलेज लेनी थी, तो मैं कांटेक्ट करूँगी सचिन सर से. थैंक यू. मेरा भी फर्स्ट इवेंट है, बड़ा अच्छा लगा बिकॉज कि आपके पास मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, अच्छे स्पेशलाइजेशंस भी हैं और आपने ये इवेंट करा. बेटर है, सबके लिए काम ही आएगा और जिसकी कोर फील्ड है उसके लिए ज़्यादा बेटर है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. ये इवेंट काफ़ी अच्छा रहा. इसमें कंपनीज के रिगार्डिंग एंड जीएसटी रिगार्डिंग सब नॉलेज मिली, तो काफ़ी अच्छा इवेंट था. थैंक यू. वैसे तो मैं थोड़ी लेट हो गई इस इवेंट के लिए, बट लेट के लिए सॉरी. पर इवेंट काफ़ी अच्छा था. जितना भी टाइम मैंने इस इवेंट को दिया काफ़ी कुछ समझ में भी आया. एनजीओस के रिगार्डिंग हो, कंपनीज के रिगार्डिंग हो, काफ़ी कुछ. तो इसके लिए थैंक यू एंड नेक्स्ट टाइम ऑलवेज. सेम फीडबैक, काफ़ी अच्छा था. मतलब मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो उसके हिसाब से काफ़ी नॉलेजेबल इवेंट था और वो टैक्सो वाला भी काफ़ी उनको मतलब न्यू पता लगा. सो आई विल जॉइन शॉर्टली. हाय फैकल्टी, माय नेम इज शिवानी भारद्वाज. बेसिकली मेरी आईटी एजेंसी है. मैं पिछले 5 साल से आईटी और डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही हूँ. सो इवेंट में आने का मेन मकसद था कि थोड़ा सा स्टार्टअप इंडिया के बारे में पता चल पाए और एमएसएमई के बारे में, जो कि हमारे एक ड्रॉबैक है. हम अभी तक वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं. सो ऑफ कोर्स मैं किसी भी कंसर्न मेंबर से डिस्कशन करूँगी और आप लोगों की हेल्प से शायद हम लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएँ. इवेंट के लिए मैं थैंक यू बोलूँगी क्योंकि ऑनलाइन सब चीज़ें इतनी विजिबिलिटी को इतना इंक्रीज़ किया जा रहा है, बट वो जो मज़ा ऑफलाइन में है वो ऑफलाइन में ही है. ट्रेडिशनल मार्केट विल ऑलवेज बी ऑन द बूम. लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं. शायद कंटेंट के केस पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ से वो इंटरेक्शन लेवल कभी पैदा नहीं हो सकता जो एक ऑफलाइन मीडियम से हो सकता है. अग्रवाल टेक्सकॉन को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने टाइम निकाला. मैं देख लूँ कि आपकी पूरी टीम लगी हुई है. पूरा टाइम आपका एक दिन का एग्जीक्यूट हो गया इस इवेंट के लिए, जो कि एक कंपनी के लिए इतनी बड़ी बात है. क्योंकि मैं कंपनी होल्डर हूँ, मुझे पता है कि वो एक दिन का 8 एम्प्लॉयज़ को लगा देना तो वो थोड़ा सा एक लॉस मेकिंग हो जाता है कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ द सर्विस सेक्टर. सो उस चीज़ के लिए आप लोग ये एफर्ट डाल रहे हैं. वो भी बहुत मिनिमम एक चार्जिंग खाली आप लोगों ने हमसे ली और टाइम दिया. हमारा रिलेशन बन रहा है, हम बिल्डअप कर सकते हैं चेन को आपके लोगों से मिलके. तो उसके लिए थैंक यू सो मच और मैं गुड लक बोलूँगा आपका नेक्स्ट टाइम. बड़ी अच्छा इनिशिएटिव था. मैं हमेशा चाहूँगी कि अगर आपके इवेंट्स आएँ तो वो हमारी टाइमलेस में हमें देखिए और हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके ऑल द वेरी बेस्ट. फेस टाइम बेसिकली दोबारा से इम्पोर्टेंट हो गया आफ्टर कोविड, क्योंकि उसके बिना लाइक ऑफलाइन मोड इज मे बी मतलब इट्स बेटर थिंग फॉर द ऑफलाइन इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन. क्योंकि जो उसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो सारी चीज़ें और जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा बेटर रहती है.
क्योंकि एक्चुअली में ऑनलाइन में तो ये भी रहता है कि कभी यू हैव ऑलरेडी सीन कि Specific स्कूल question में होते हैं। कॉलेजेस की जो क्लासेस है तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सेम हमारे साथ भी वैसे ही रहता है, चाहे भले हम जितना ऑनलाइन को प्रेफर करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन था फूड लाइसेंस के लिए। तो फूड लाइसेंस के लिए तो मुझे पता चला, मतलब बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो और बाकी मुझे और भी सर्विसेज के बारे में पता चला, जैसे कि एनजीओ होते हैं और कंपनीज़ के बारे में कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी सर्विसेज थी और बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच मैम। Firstly, thank you for inviting us. It was a great session. I got myself a few points clear. What I would suggest in the next meeting that there should be a specific topics like for research purpose or whatever it is for our knowledge. Then we can have an open discussion. So that will be more. For sure, we will definitely For that do. they need more filtration in the like invite. So that they need some gathering also. Exactly. Separately. एजुकेशन हो गया, सीख नहीं आए हो इसलिए बुलाए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैं अग्रवाल सर को कहूँगा, सेकेंडली गजेंद्र सर जी जी। और मैं तो सभी लोगों से ये कहूँगा जिस प्लेस पे आप लोग काम कर रहे हो रियली लकी पर्सन हो आप सब। थैंक यू सो मच मैं ऑलरेडी एक पार्ट रह चुका हूँ, मेरा मैं तो ये कहूँगा मेरा जो वर्थ हुआ वो यहीं पे हुआ। तो सर वो जानते भी हैं और मैं हमेशा अपने स्टाफ से कहता हूँ, हमेशा कहता हुआ आया हूँ अपने स्टाफ से, मैं यदि तुम लोगों को मिलना है तो रविंदर सर से मिलना और बनना भी है तो सर जैसा ही बनना। और स्पेशली मेरे जो स्टाफ आया था मिलने सर के लिए, वो अग्रवाल सर यहाँ नहीं है, आप सबसे मिल लिए। शिखा मैम को तो मेरा स्टाफ पूरा जानता है, कुछ ही लोगों को जानता है, बाकी सबको नहीं जानता। बट मैं अगेन फिर कहूँगा सर जो भी क्लाइंट है या सर आप लोग भी हो, मैं तो इनका पार्टी हूँ इसलिए ज़्यादा थोड़ा बोल जाऊँ तो वो है। नहीं गजेंद्र सर की जो आपने जो बताया है क्वालिटी उनकी काफ़ी अच्छी हमने देख भी ली है और उनको सुन भी लिया है, उनके एक्सपीरियंसेस उनकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है। सर ये तो अब जब मैं तो सर के ब्रेन को ना हार्ड डिस्क बोलता हूँ हमेशा अपने ऑफिस में कि उनसे तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा अपने आप को, बट लकली वी आर लकी जो हमने काम किया सर के साथ। और भगवान ने चाहा तो बहुत आगे तक हम फिर करेंगे दोबारा से, और हो सकता है इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हों तो बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू। फीडबैक मिलता रहे कि सो दैट हम आगे इम्प्रूव करें और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि सर सीरियसली बहुत एक्सपर्टीज हैं, मतलब जो उनका जिस भी फील्ड में है और बहुत ही मतलब ग्रेट हैं सर। सो अब हम आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे सर्टिफिकेट, 1 बाय 1 मैं आपको बुलाऊंगी और हमारे ऑनर्ड गेस्ट आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। मिस किरण जोरदार तालियां। मिस दीपांशी, ट्विंकल, तालियां बजती रहनी चाहिए। साचन संकल्प, साचन, अमनदीप सिंह, शिवानी भारद्वाज, हुकुमचंद सर, मिस्टर प्रतीक संगाई, मिस्टर प्रतीक, आकांक्षा दवर, चंद्रजीत बत्रा, मिस नेहा, मैम नेहा है। सर सीएज आईटी मैनेजर, भाई
इमरान खान। सर को फर्स्ट कहने देना चाहिए था सर, सबके बाद में मिस्टर दौलत राम।